Testing. 1, 2, 3. Testing. Let me know how the sound is. Jai Prakriti, good evening to the 4th Monday session of Zero Therapy that's live on Facebook. We're not having the session live on Zoom anymore because of technical issues that we're facing with Zoom. So I hope all of you are watching us on Facebook today. And if you have any technical issues, please feel free to message us on the WhatsApp number given on Zero Therapy Mitra and Zero Therapy. And for any doubts that you might have regarding the session, please feel free to ask on Facebook Live or text us on the WhatsApp number given on the Zero Therapy and Mitra group. Now, since it's 8:10, without further ado, please welcome Uncle Ji on the dais. Jai Bharati. Today temperature is very high, 41 field temperature. और यहाँ फैन नहीं लग रहा है हमारे यहाँ पर, and I don't want that. People must know why you are calling Jai Bharati. This is one of the art of living. Prakriti means nature, and art of living means you have to be with the nature. Whatever you do, it has to be as per the nature, with the nature. अगर आप स्नान भी कर रहे हो तो नेचर के साथ, what nature loves you. खाना खा रहे हो तो नेचर के साथ में रहो. Whatever you do with the nature, that is why Zero Therapy says every time Jai Prakriti. तो अब आर्ट ऑफ लिविंग में फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट इज योर थॉट शुड बी नेचुरल. एंड हाउ डू यू गेट द थॉट्स नेचुरल? Unless you are with the nature, your furniture, your lifestyle, your friends, everything should be natural, not artificial. Now, what are the things artificial? See, the look. If you are more worried about the external look, that itself is artificial. You should not bother much about the external look rather than the inner. If your furniture or your bathing, soap, towel, everything has to be with the nature. लेकिन आजकल 80% architect, 80% of the interior, they give you the best sofa with cushion and all that, and we tend to buy because we love unnatural things, and these people charge you for your, what I can say, your likings. तो अपने को एकदम नेचुरल सोचना वो कब आ सकता है? जब नेचर के साथ में हो. हर जगह मैं देखता हूँ घर में कहीं भी फर्नीचर तो बिल्कुल बकवास,
स्नान करते हो तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट सोप. यू कैन यूज नेचुरल जो पुराने ज़माने के हैं. आई डोंट थिंक यू नीड अ सोप एट ऑल. व्हाई डू यू नीड अ सोप? बट लोग करते हैं. धीरे धीरे आप अननेचुरल के साथ में रहने से ब्रश, पेस्ट, सोप, कारपेट, सोफा, प्लास्टिक, your nature becomes artificial, and people sell only artificial things because you love artificial. They make money. आपके जो नेचर के अनुसार चीज़ें बिकेगी. इफ एवरीवन लाइक्स नेचर आइटम है, अननेचुरल आइटम बिकना बंद हो जाएगा. तो अपने पहले नेचर के साथ में रहना सीखो. बोलते हैं अपने को अपना नेचर. वाई द वर्ड कहीं हाउ डू गेट द वर्ड नेचर? नेचर वर्ड यह है कि नेचर में कहीं इगोइज्म नहीं है, नेचर में कहीं जलस नहीं है, नेचर में कुछ उल्टा सुल्टा नहीं है. एंड इफ़ यू आर लाइक दैट, दैट रियल मीनिंग ऑफ नेचर इज़ दैट. लेकिन अपने आजकल नेचर तो मीनिंग भी चेंज हो गया. नेचर का मीनिंग एकदम चेंज हो गया. एंड वंस जब पैदा होता है बच्चा, वहीं से उसका नेचर शुरू हो जाता है. मम्मी क्या खाती है, मम्मी क्या शो करती है, मम्मी क्या देखती है, उससे 50% तो डिसाइड हो जाता है. और बाद में बच्चा बड़ा होता है तो देख देख कर बिगड़ना लगता है. देखने से ट्राई टू अवॉइड ऑल अननेचुरल थिंग्स. कोई भी चीज़ उससे दूर रहो. पहले नेचर को बदलना है तो यू हैव टू बी वेरी टफ. एंड डोंट लिसन टू ऑल बकवास. जितना धीरे धीरे अपने बकवास सुनेंगे, बकवास दोस्त रहेंगे, बकवास लोग रहेंगे आजू बाजू में, अपना नेचर विदाउट आवर नॉलेज सबकॉन्शियसली विल चेंज. तो अपने को इससे बहुत दूर रहना है. उसके बावजूद अपना प्रिंसिपल नहीं तोड़ना है. आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स अपना प्रिंसिपल कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है. अगर आपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो आपका इनर पावर एकदम घट गया. इनर पावर के लिए डोंट कॉम्प्रोमाइज. बट व्हेन यू आर इन अ फैमिली, ओपिनियंस may vary. Try to convince. Everyone has got opinion. अब जीरो थेरेपी के बारे में लोग कुछ भी बोलेंगे. If you have to do something big, you will face critics. अगर अच्छा काम करना है, क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहना पड़ेगा. लेकिन क्रिटिसिज्म को अपना फैलाने का काम नहीं है. जिसको फैलाना फैलाओ. बट जीरो थेरेपी पीपल डोंट हैव टू स्प्रेड द क्रिटिसिज्म, क्योंकि झूठ को फैलाने में कोई मतलब नहीं है. और अपना इंटेंशन अच्छा है, अच्छा ढूंढने के लिए अपने को सही अच्छा ही मिलेगा. ये एक्सपोज वर्ड, इस टाइप के जो वर्ड है ना, बी अवे फ्रॉम ऑल दिस अननेचुरल. तो अपना ऑटोमेटिकली लाइफ एक लाइफस्टाइल ऐसे हो जाती है कि अच्छा ही कोई बुक उठाया, अपने 4 लाइन अच्छी मिलेगी. बकवास रहेगी बुक. कहीं भी जाओ, एवरीवेयर यू विल लाइक नेचुरल. तो ऐसे अपना जो प्रिंसिपल है, डोंट चेंज. अगर आपको ऊपर आना है तो जस्ट डोंट चेंज द प्रिंसिपल, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल. ओपिनियन वेलकम, लेकिन whenever you want to go, अगर आपको नॉलेज है तो डोंट ट्राई टू शो द नॉलेज, बिकॉज देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर नॉलेज एवरीवेयर. ओनली सम प्लेसेस देयर विल बी रेस्पेक्ट नॉलेज. ट्राई टू शो द नॉलेज देयर वेयर देयर इज रेस्पेक्ट. इफ देयर इज नो रेस्पेक्ट, डोंट गेट अपसेट, बी अवे फ्रॉम दोज पीपल. तो अपने उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर अपने लायक, अपना वाइब्रेशन, अपना फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच होता है, वहीं तुमने जाना है. नहीं तो मुंह बंद करके रहना है, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सच तो है ही नहीं दुनिया में. और सच ढूंढना बहुत, और सच फैलाने के लिए अपने खुद पहले सच होना पड़ेगा. ट्राई टू प्रैक्टिस कि झूठ नहीं बोलो. झूठ नहीं बोलने का प्रैक्टिस करना इतना ईजी नहीं है. टॉकिंग सो ईजी बट डूइंग इज नॉट ईजी. अच्छा सच फैलाना बहुत ईजी है, बट सच पालना बहुत डिफिकल्ट है. तो एवरी टाइम लाइफ में सच प्रैक्टिस ट्रूथ हर जगह. अपने मैंने बोला है तो वो बोला है तो करो. बहुत बार मैंने देखा कि जो लेक्चर देते हैं बेचारे अच्छे लेक्चर, वो खुद सुधर जाते हैं. जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, दे आर नॉट ऑल दैट गुड, बट व्हेन दे लेक्चर ऑन ऑनेस्टी, ट्रूथ, आई हैव सीन मेनी टाइम्स पीपल बिकम ट्रूथफुल इन लाइफ ऑटोमेटिकली. उसको बोलते हैं आउट ऑफ लिविंग. आराम से रहो, ना लेक्चर देकर, भीड़ इकट्ठे करके. और अपने पैसे से जो काम कर सकता है वही बेस्ट. पैसे इकट्ठा करके लोगों से और कोई काम करता है
उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हिडन एजेंडा कि मेरा नाम हो। अगर आप किसी नाम के लिए कर रहे हो, कोई डोनेशन करना है नाम के लिए इकट्ठा करके, हमारी क्लब ने इतना दिया, दैट इज नो यूज। नाम के लिए कभी मत करो, करो ओनली व्हेन यू आर हैप्पी टू डू इट, प्लीज डू इट। डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ कि हमने ऐसा किया है। और अपने जेब से जितना हो सके, टाइम, मनी, व्हाट एवर पॉसिबल, तन मन धन जो भी अपने से दे सकते हो करो, लेकिन उसके ऊपर ले करके इकट्ठा करके अपना नाम करना इज द सोर्स ऑफ फेम इज एकदम रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। पहले अपनी कैपेसिटी बनाओ वेल्थ की, अपनी कैपेसिटी हो हेल्थ की, उसके बाद में टाइम हो तो फैमिली, उसके है तो बाद में लोगों का काम करो, देन इम्प्रूव। अपना जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल है उसकी ऑरा इतनी बढ़नी चाहिए कि वो आकाश में फैले और लोग उसको पिकअप करें। अपने जीरो थेरेपी का नाम इज नो इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर तुमको याद रहेगा कि मैंने 5 साल की, आई थिंक 2009 जब जीरो थेरेपी छोड़ा तो अपने बोला था कि आफ्टर क्या होगा, किसी ने पूछा था कि जीरो थेरेपी क्या होगा, मैंने उस दिन क्लियर बोल दिया कि आई पुट ऑल दिस ट्रूथ एंड फैक्ट्स इन द यूनिवर्स, एनीबडी कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट। और अभी आजकल वही हो रहा है जो जीरो थेरेपी बोल रहा है, वही इन पैचेस, स्टिक्स एंड बेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्टेन पॉइंट्स आर गेटिंग प्रूव्ड एंड वी आर नॉट वरीड इफ एनीबडी। अपनों को जीरो थेरेपी का नाम नहीं चाहिए, हमने ट्रूथ डाल दिया है, ट्रूथ आकाश में डाल दिया है। जिसको कनेक्शन करना है कनेक्शन करो, स्प्रेड करना है स्प्रेड करो। अपनी आत्मा इतनी बार बोलने की वी कैन सेंड इट थ्रू दी वर्ल्ड। सो बेस्ट थिंग इज सेंड इट थ्रू द वाया, तो ट्रूथ ऐसा फैलेगा। नहीं तो हर जगह झूठ अपने को दबा देगा। ऑलवेज एक रेसिस्टेंस टू अनट्रूथ बहुत जरूरी है। अनट्रूथ के लिए रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं मेरे को क्या करना, मेरे को क्या करना। सी डोंट फोर्स योर ओपिनियन, बट उनसे दूर रहो झूठे लोगों से। रेसिस्टेंस बात करना है तो करो कि यू नो आई डोंट एग्री, ये बहुत जरूरी है। अगर अनट्रूथ को रेसिस्ट नहीं करेंगे तो झूठ फैलता ही जाएगा। और उसके लिए बहुत अपने आप को तपस्या करना पड़ता है भैया। अपना फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस टाइम, अपना इमोशनल, गुस्सा नहीं आना, एंग्री नहीं होना, सब सो नहीं नॉट इजी टू स्प्रेड। क्योंकि अगर घर में तुम गुस्सा कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ट्रूथ फैलाना है, यू गॉट टू चेंज योर बॉडी, लाइफस्टाइल, इमोशनल, सब बदलना पड़ेगा। अगर बाहर फैलाना है तो तुमने कोई जूते भी मारेगा तो भी सहना पड़ेगा, कोई अपने बारे में खराब बोलेगा तो भी सहना पड़ेगा। वी रियली हैव टू स्प्रेड कि ट्रूथ को फैलाना इतना इजी नहीं है। अपना ऑल राउंड बॉडी माइंड सब एकदम अच्छा होना चाहिए तब। और बोलना बहुत इजी है, करना बहुत डिफिकल्ट है। स्लोली स्लोली अपने ट्राई करो सब लोग, तो सच फैलेगा। नहीं तो सच फैलना नहीं फैलेगा। पीछे आने वाली पीढ़ी दुखी होगी। उनको अपने छोड़कर जाओ जाने के पहले कि इस टाइप की एक एजुकेशन देकर जाओ। एजुकेशन इज नॉट ऑल दी बुक्स जो पढ़ना ये करना, वो कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इतना सिंपल है। अनपढ़ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिसेंट होता है, पढ़ने वाला डिसेंट होता है दिखने में, मैनर्स, टेबल एटिकेट्स, वो सब अननेचुरल। होटल में गया, कांटे को ऐसा रखो वैसा रखो, क्रॉस रखो, ऑल दीज आर एटिकेट्स अननेचुरल। नेचुरल गाँव वाला आता है, बेचारा खाता है चल जाता है, ही डजंट लुक। किसी कोई देख रहा है आपको, मत सोचो कि मेरे को कि देख रहा है इसलिए राइट होना है, नहीं देख रहा है। अपने आप को देखो, खुद अपने आप को देखो कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हमारे दुकान में आते हैं भाई सब कोई नहीं है, सब बिना बिल दे दो। मैं बोला मैं हूँ ना भाई, मैं खुद देख रहा हूँ ना, हाउ कैन आई गिव यू ऑल दैट। यू हैव टू हैव ऑल दिस प्रैक्टिस 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 एंड एज द सिचुएशन चेंज वी हैव गॉट टू चेंज। पहले अलग था नेचर, अब नेचर को बदलना पड़ेगा। क्यों कि सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, सिचुएशन चेंजेस, यू गॉट टू चेंज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस। अपना खुद का ज़्यादा नहीं चल सकता है, अपने को बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत फैलाना है, खुद भी घर की कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वन हैज़ टू चेंज एज पर द सिचुएशन। नॉट कि पुराना था अभी पेंशन, वैसा नहीं हो सकता। वन हर चीज़ में अपना कहीं भी फैलाना है तो अपने को चेंज होना ही पड़ेगा सिचुएशन अनुसार। बट अगेन एंड अगेन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल। अब वो किसी ने क्या पूछा, भंडारी ने कुछ पूछा है, किसी ने पूछा ना भाई भंडारी ने पुराने को ये तो ठीक, पहले स्टार्ट फास्ट। So one of the old doubts is that is it possible to get dandruff because of bad smell? अरे भाई एक मिनट, एक तो आर्ट ऑफ लिविंग में पहले तो ये जीरो थेरेपी इज नॉट ए ट्रीटमेंट एट ऑल।
लोग इसको अभी ट्रीटमेंट समझ करके कोचिंग पूछने लगते हैं, तो वो अगर ट्रीटमेंट है तो 1 to 1 हो सकता है। ये डाउट इस टाइप के डाउट क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्यों कि अनलेस आई नो द रीजन, जीरो थेरेपी इज द काज। सब लोग को क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, डाउट नहीं है वो सभी, उनका पर्सनल क्वेश्चन है, दैट इज नॉट द डाउट कि तुम क्या खा रहे हो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। डैंड्रफ और मेडिकल साइंस ने ऐसा वर्ड बनाया, मेरे को इतना दुखी होते हैं। मेडिकल साइंस ऐसा वर्ड बनाया कि तुमको स्किन का करके बोल दिया कि मेरे को ये टैग वैग इतने नाम दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट दैट जब पुराना जमाना था तो 4 ही बीमारी होती थी, मलेरिया, टाइफॉइड, ऐसी 2-4 बीमारियां होती। अब इतनी बीमारियां बढ़ गई है, बीमारियां नहीं बढ़ी है, नाम चेंज कर दिए जाते हैं और अपने बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया। जो डॉक्टर बोलता है उसका इलाज या नहीं हो सकता तुम्हारा, और अगर भी इलाज होना है तो मंडे सेशन में वहाँ चले तो ही आ सकता है। 1 to 1 नहीं है तो नहीं मालूम पड़ेगा। बिकॉज लुक एट यू, आई कैन से वाई यू परचेज द डैंड्रफ। मेरा एक्सपीरियंस है डैंड्रफ आता क्यों? डैंड्रफ इज नॉट ए बीमारी एट ऑल। पहले नहीं आता, क्यों आता है भैया? अब आजकल क्यों आता है? सो यू मस्ट वॉच योर लाइफ स्टाइल। खाने में कहाँ गड़बड़ है? ऑयल खाने में, हेयर ऑयल, शैम्पू, कहीं भी गड़बड़ है। डैंड्रफ इज नथिंग बट केमिकल बॉडी के अंदर, वो नहीं फेंक सकता है, सिर में आता है। मुझे मालूम है बहुत से दोस्त हैं जिनका पहले डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था, जगह उसका एकदम कम हो गया। मेरा तो ऐसे गिरते थे, खाने में एकदम इम्प्रूव हुआ, अब डैंड्रफ चला गया। तो डैंड्रफ का इलाज मत ढूंढो, डैंड्रफ का कारण जरूरत रहे अगर मालूम है तो प्लीज़ कारण ढूंढो, कारण ढूंढो, या मेरे को आकर मिलो। अगर मंडे को हो सकता है तो कुछ सजेशन हो सकता है, इलाज नहीं हो सकता है। आजकल लोग समझते हैं जरूरत रहे पूरे इलाज है, इलाज है। इलाज नहीं है भैया, बॉडी खुद इलाज करती है। विपिंजन कोई इलाज नहीं करता है। तुम बॉडी को ठीक ढंग से रखो। बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, खाते रहते पीते रहते रॉन्ग, और सब बोलते हैं मेरे को स्किन ये वो प्रॉब्लम। कितना दुख होता है कि अनलेस यू नो द कॉज, हाउ कैन यू फाइंड आउट ए क्योर? एंड द नेम्स आर गिवन डेली, वी गेट सम न्यू नेम्स। मुझे मालूम है कि एक बार मैं ऐसे बिफोर जीरो थेरेपी, जस्ट स्टार्ट जीरो थेरेपी, आंखों के आगे काले काले आ रहे थे। आई नो इज नथिंग बट स्टिल इस टाइप के डॉक्टरों के पास कोचिंग के लिए मैंने शंकर नेत्रलय गया एंड आई जस्ट फुल डे वेस्ट किया मैंने। ये क्या भाई ऐसे क्यों हो रहा है? बोलता भाई डू कम, योर रेटिना इज गुड, योर वॉइस इज गुड, एवरीथिंग गुड। फिर भी मुझे जानना था कि काले काले लोग आते हैं, फ्लोटिंग क्यों आता है? एंड दैट डॉक्टर सेड इट्स अ बिग नेम एंड मीन्स नथिंग एंड नो रेमेडी। तो ऐसा बहुत से आजकल कर अपने डॉक्टर बोला विपिंजन इलाज कर रहे हैं। कितना दुख होता है कि ये सब अपने मैनर्स, मतलब अभी मेरे को याद आ गया कि 15 अप्रैल को एक लेडी फोन कर दिया, सी हाउ आवर मैनर्स, अंकल मेरी आज बर्थडे ब्लेसिंग। हाउ कैन आई इमेजिन अ फोन? और मेरा जो फोन है विपिंजन का नहीं है भैया, इस जीरो थेरेपी के लिए, विपिंजन ऑफिस के लिए, घर के लिए नहीं है फोन। जब कोई बोलता है मेरा कमर दुख रही है, अभी फ़ोन नंबर आने से मेरे को कितना टेंशन हो गया, कमर दुख रही है 2 दिन से, फ़ोन ऐसा फ़ोन, ये सब थोड़ा कंसर्न रहो भैया कि ये सब फ़ोन में नहीं हो सकता है। आई कैन ओनली गाइड यू एंड यू आर योर डॉक्टर। आजकल तो ऐसे बुक निकल गई है, जरूरत के बाद यू आर डॉक्टर, यू एंड योर सिस्टम, सब एज इट इज़। अपने जो बोल रहे हैं वही वर्ड्स में बुक में ऐसे ही वैसे ही आ रहा है। इम्यूनिटी फर्स्ट अपने बोले इम्यूनिटी, इफ योर इम्यूनिटी इज गुड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तुम्हारे को डैंड्रफ वैंड्रफ, तो आजकल के ज़माने में डैंड्रफ हटना बहुत मुश्किल है। क्यों कि हर खाने के अंदर फर्टिलाइज़र है, हर खाने के अंदर। तो फर्टिलाइज़र बॉडी में निकलेगा कैसे? एक बुक पढ़ रहा था मैंने, बॉडी में फर्टिलाइज़र धीरे 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 इतना जाता है कि अल्टीमेटली निकल नहीं सकता है। इतना धीरे धीरे जाता है बॉडी में फर्टिलाइज़र, केमिकल, स्लोली इन स्मॉल डोजेज, एट द एंड ऑफ द लाइफ इतना चले जाता है केमिकल कि विच यू कांट इमेजिन, बट स्मॉल डोजेज में जाता ही रहता है बॉडी में। तो ये लाइफस्टाइल कैसे होगा? गांव में रहो, अपना खुद खेत करो तो हो सकता है इलाज, नहीं तो ये सब का इलाज हो ही नहीं सकता है। एवरीवेयर आई नो वन, एक लड़की के बाल ही उड़ गए थे, कोई सीताराम क्या लड़का मल नहीं कोई, उसके लड़की के बाल उड़ गए, पूरे गायब हो गए। और बालों के ऊपर उतना, लोगों को तो लेडीज आर नेचुरली, बाल आने के बाद में बाल वापिस आ गए, नहीं तो शादी करने के लायक नहीं थी वो, हो सकता है। बट ऑन द फोन लाइक दिस डॉक्टर सेज ही नेवर, वो जो लड़की कुछ नहीं बोली, डॉक्टर क्या बोला कुछ नहीं बोला, आया देखा, मैंने बोला अच्छा भाई ऐसा करो। बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, कारण का इलाज हो सकता है। समझो अगर जीरो थेरेपी में कारण का इलाज
डोंट ट्राई टू टेस्ट एंड जब खुलेगा मंडे 7:15 to 7:45 वी आर रेडी टू गाइड। लेकिन खुद हर आदमी अपना डॉक्टर बन सकता है। अगर तुमने लिखा आज ये खाया है और वाच किया बॉडी का, फिर कल ये खाया बॉडी का वाच किया, यू डोंट हैव टू कम एनीवेयर, यू डोंट हैव टू गो टू विपिन। खुद अपना आप डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन थोड़ा मेहनत तो तुमने करना पड़ेगा भैया कि ये आज मैंने खाया, ये पानी बदला, पानी इस बॉटल का था, इसका था। ऐसे तुम लिखते रहो। 100% I tell you, you can become your best doctor. Nobody else can help you. Vipin Chand cannot help you. You only can help. So, can we eat bhiga hua badam and anjeer in this season? Can we eat walnut in this season? By Ekta Choradia. देख भाई, हमेशा हमने बोलते हैं गर्मी में ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा बिल्कुल ही अवॉइड करना ही अच्छा है गर्मी में, और भिजे हुए बादाम। बट आजकल मैंने देखा है कि जरूरत रही की बॉडी में बादाम बहुत ज़्यादा हो गई है, दबाए सालों भर। तो अब मेरे को लग रहा है कि दैट इटसेल्फ में बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द बॉडी एक्सेस। बट जनरली एनी एक्सेस विच इज नेचुरल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। एनी नेचुरल थिंग एक्सेस इट डजंट रिटेन इन द बॉडी, इट गेट्स आउट। तो उसमें कोई गलती नहीं है। अंजीर भिजाओ एट रैंडम, कभी कभी कोई भी ले सकता है। डोंट मेक इट ए हैबिट। नंबर 1, डोंट टेक इट एज ए मेडिसिन, टेक इट एज ए स्मॉल फूड। ताकि फूड डेली तो नहीं खाते हैं, थोड़ा आइटम बदलते हैं, वैसा कभी कभी वाच करो। अंजीर खाने से क्या हुआ, बादाम खाने से क्या हुआ, खुद अपना वाच करो। बट दिस टू आर अलाउड, ड्राई फ्रूट्स आर नॉट एट ऑल अलाउड इन 40 डिग्री टेम्परेचर, 34 डिग्री टेम्परेचर। बॉडी का पानी खुद ही खा जाएगा भैया, पानी बॉडी में नहीं रहता। ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट, देन व्हाट इज, अपने क्यों भिगाते हैं बादाम को कि बॉडी का खावे नहीं अपना, बॉडी का पानी नहीं खावे, तो भिगा कर करते हैं ताकि वो बॉडी में पानी लेवे नहीं। और अंजीर में इसलिए भगाना पड़ता है कि इतना आयन अंजीर में, देखा पूरा लाल हो जाता है सवेरे, पूरा आयन कंटेंट निकल जाता है, वह पॉलिश निकल जाता है। उसके बाद में अपने लेते हैं। तो अंजीर इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड जो पेट में जाने से एक मूवमेंट करती है। कोई भी चीज़ फेंकोगे आप, सीधी जाएगी। अंजीर इट रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स एंड मूव्स। मतलब जैसे अर्थ कैसे एक्सिस में होती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक अफेक्ट। अंजीर से इतना पेट इसलिए साफ होता है कि इट्स अ पेरिस्टाल्टिक अफेक्ट इन द बॉडी, और कोई भी दूसरा बीज नहीं काम आता है। और लोग बोलेंगे बहु बीज मत खाओ, और ये दिस इज अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड विदाउट हेल्थ यू कांट इवन प्रे गॉड। अगर अपने को दुखी रहेंगे तो भगवान का ध्यान ही नहीं आएगा। अगर आएगा डर से, लेकिन कर नहीं सकेंगे, डर से आएगा लेकिन कर नहीं सकेंगे। मुझे मालूम है ना, आई एम नॉट एबल टू प्रे एट ऑल। सो व्हेन यू आर नॉट हैप्पी यू कैन इवन प्रे। मेरा बॉडी ऐसा है, हेल्थ हैज टू बी, तभी भगवान के पास प्रे कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कोई भी तीर्थंकर, एक भी तीर्थंकर दुबला नहीं हुआ। फर्स्ट उनका हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ऑल दैट पुट टुगेदर वेक बॉन्ग विल मेक यू स्पिरिचुअल हेल्थ। उसके बाद में आएगा तीनों मिला करके। बिकॉज लास्ट टाइम वीडियो में ये अकेला नहीं आ सकता स्पिरिचुअल, यू हैव टू कम ऑल दिस थ्री मिक्स। How to be aware of self ego and how to overcome it by Rajesh. ठीक है, देख भाई, आई डोंट नो वाई पीपल आर वर्ड यूजिंग सो मच ऑफ वर्ड इगोइज्म। अगर आपको मालूम है कि ईगो है, द वेरी सोल्यूशन इज यू। अगर आपको हाउ टू ओवरकम ईगो अगर आपने सोचा है, मतलब आपने सोचा कि आप में ईगो है, और ये दूसरों के लिए तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। दिस अ क्वेश्चन फॉर सेल्फ ओनली, इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर विपिन चंद, टिपिन चंद। अगर आपने सोचा ईगो है, अगर विपिन ने सोचा है मेरे को ईगो है, अगर सोचा है, तो उसका सॉल्यूशन अपने में ही है। और ईगोइज्म स्टार्ट कहाँ से होता है, वेयर डज इट स्टार्ट? सोशल इनकम, रॉन्ग फूड, अपना मैं पना ईगोइज्म है। अगर आपको नॉलेज ज़्यादा है तो आपको ईगोइज्म आ सकता है। अगर आपके पास में पैसा ज़्यादा है, अगर सोचते हो तो पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम, नॉलेज इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव नॉलेज, सोच यही प्रॉब्लम है। पैसा है, लुक है, अपना स्टाइल है, लुक है। मेरे जैसा कोई कपड़ा कोई नहीं पहनता, मेरे जैसा लुक कोई नहीं है। मेरे पास चश्मा है, मेरे पास वो पेन इतना अच्छा है, मेरे पास ये जो भी है, लोग
वो सब इगोइस्ट है कि मेरे पास ये बेस्ट पेन है, ये है, वो है, वो है. यू ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, बट डोंट थिंक आई हैव गॉट द बेस्ट. यू बी हैप्पी विद द बेस्ट, बट आई ओन दैट बेस्ट. दैट इज द इगोइज्म. मेरा लुक इतना अच्छा है, मैंने वहाँ से ये दैट ऑल, and that comes out, and once you know your ego answer comes, once you know the cause, the solution comes easily. बीमारी का कारण मालूम पड़ा तो इगोइज्म का कारण अपने आप में दूसरों को ठीक नहीं कर सकते. इगोइज्म इज यू, नो डॉक्टर, नो एनी, nobody else can do that. Jai Prakriti Uncle Ji, if we have hurt anyone and we have realized about it, what should we do? By Vinay Ranjula. अरे भाई, आपने अगर रियलाइज कर दिया हर्ट है तो आपका प्रतिक्रमण हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा. वो आपने जो किया उसका पाप तो भुगतना ही पड़ेगा तुमको, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा. अगर आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, गलती नहीं सोची, जन्म 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 चलता ही रहेगा. सो इस तरह से तुमने उसी समय जहाँ भी गलती किया, माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है. मुझे बार बार ये इंस्टेंस आता है कि मेरा और हमारा मम्मी का, हमारी फैमिली का बिल्कुल ही नहीं बनता था. सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 8:30 मॉर्निंग आई वाज ट्रैवलिंग इन ऑटो एंड आई थॉट ओके, सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, माता जी से लफड़ा नहीं है. 9:30 सी क्लास तो मैंने पहले कर दिया, बाद में माफ़ी मांगने से कुछ नहीं हो सकता है. पहले जो भी हो, तो ये अपना अंदर में इतना रहता है, गलती नहीं निकलना अपना आप याद आता है. नहीं तो क्यों याद आता मेरे को, जबकि मैंने 10 साल से मदर को देखा ही नहीं, गया ही नहीं. सडनली ऑल ऑफ सडन आई गेट. सो अपना आप यू हैव टू प्रैक्टिस. Jai Prakriti Masaji, you have a system of not being out of the house for more than 7 days. What is the reason behind it, and what is it for family members? 7 days. Dharmendra Parekh. 7 days, 7 weeks. Not being out of the house, matlab if you're outside, you're not outside, out of town for more than 7 days. What is the reason behind it? मेरा नहीं है वो. And for family members. गलती है. मैं तो कभी लंबा जाता ही नहीं, जाऊँगा तो 4 दिन, क्योंकि ऑफिस है ना मेरा तो ऑफिस है, इसलिए 4-5 दिन हॉलीडे तो उसके ऊपर नहीं जाता. लेकिन आंटी लोगों का जैसे है वो हमारा रूल है. क्यों कि रिपिंचन कैनॉट स्टे. सबसे बड़ा पनिशमेंट लाइफ में मेरा इस बार है. स्टेइंग इन हाउस इज द बिगेस्ट पनिशमेंट वन. स्टेइंग इन द हाउस विदाउट आंटी इज मच बिगर, बिकॉज मैं तो होटल जैसा हूँ. शाम को आना तो रहना घर में, दिन भर कहीं भी जाओ, लेकिन कोई नहीं था. तो ये 2 तरह से मेरे को बहुत बड़ा पनिशमेंट है. कारण है कि when you are at home, your family people should receive you all the time. That is harmony, right? तो हमने क्या करते थे, हमारा एक पैकेज था, संडे को चाय साथ में पीना. हमने सब फैमिली वाले उठे तो बहुत अच्छी बात है, बाहर वाला है तो और अच्छी बात है. नहीं तो मैंने सवेरे 5:40-6 o'clock चाय संडे को पीना ही है. तो इसलिए हमने क्या किया कि आंटी ने चाय पिलाना है, शाम को जीटी होती है, तो संडे सवेरे हमको चाय पिला दो, शाम को चले जाओ. वापस संडे मॉर्निंग 6 o'clock आती है जीटी, वापस हमको चाय पिला दो. तो हमारा ऐसा अरेंजमेंट था कि बस उसके ऊपर नहीं, कहीं संडे 6 days तो मेरे को घर का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, संडे इज ओनली इम्पॉर्टेंट. सो इसे हमने बनाया है, अच्छा है, सब बना सकते हैं. Color of the palm changes based on what we eat. I've heard in Bhandari. Yeah. Bhandari. Color of palm. I'll just finish. I've heard in Monday session. Can you kindly refresh our memory as to what color resembles what? नहीं रे भैया, कलर तो ऐसा है कि मेरे को अभी इतना अच्छा है, आज ग्रीन हो गया. आई डोंट नो वही मैं तो वाच करना है अपने कि क्या खाया क्या नहीं खाया. आज आई डोंट नो वाई इट्स बिकम ग्रीन. इट इज नेवर ग्रीन. नो वी हैव टू थिंक. मे बी आज मैंने नया आइटम केला खाया, केमिकल पॉइजन बिकम्स ग्रीन, पॉइजन. और हेमोग्लोबिन अच्छा है तो लाल. हल्दी, bit of mirchi, and along with ghee, all that makes your blood pure. और उसमें लाल रहेगा. थोड़ा भी चाय में गड़बड़ है या धनिया पुदीना में गड़बड़ है तो हाथ ग्रीन हो जाता है. 2 ही होता है जनरली कलर, लाल या ग्रीन. ब्लड इज प्योर, ब्लड इज इम्प्योर. तो मैं वाच करता हूँ, आज इम्प्योर हो गया मेरा ब्लड. सी, एंड ब्लड इम्प्योर के लिए इलाज है कि यूरिन ज़्यादा आना चाहिए, नहीं तो प्योर होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से होगा. दैट यूरिन ओनली कैन मेक द ब्लड प्योर.
लेटरिन से नहीं हो सकता, बट ये टू वॉच। आज भी ये भंडारी बोला तो मैंने देखा, मेरा कभी ग्रीन नहीं था, इतना ग्रीन है। मतलब कितना केमिकल है, डेंड्रफ बैंड्रफ क्यों नहीं आएगा, इतना केमिकल। पक्का केला खाया उसमें भी हो गया, इतना केमिकल आजकल, यू कांट बिलीव यार। मैं तो जहाँ तक सोचता है, मैं तो वेजिटेबल हार्डली आई टेक वेजिटेबल इन वंस इन अ मंथ और वंस इन 3-4 मंथ्स। वेजिटेबल खाते ही नहीं, मतलब ग्रीन कलर ही नहीं खाता। ग्रीन कलर इटसेल्फ मेरे को लगता है आजकल भिंडी विंडी सब में कलर डाला हुआ है, सब में। सो डिफिकल्ट। Jay Prakriti uncle ji, what is mood? Why does it keep on changing? And where does it occur in the body? Seeking blessings, Nilesh Mehta. नीलेश मेहता अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मूड, नीलेश को मालूम मूड बॉडी में कहाँ से आएगा। मूड इज कमिंग फ्रॉम द माइंड। मूड इज नॉट एन ऑर्गन एट ऑल, राइट। एंड मूड इज योर माइंड, एंड माइंड इज व्हाट यू सी। उस समय में आप कहीं जाते हो, घर में, होटल में, किसी के पास, वहाँ एकदम नेचुरल आइटम रहती है, नेचुरल स्मेल रहती है, तो मूड बदल जाता है। उसी समय आपको किसी ने गलती बोल दिया कोई, और इफ यू डोंट लाइक अ पर्सन, यू अगेन यू तुम्हारा मूड। तो मूड इज एवरी सेकंड जो होता है सामने, या एवरी सेकंड जो सोचता है, बाय थिंकिंग, बाय सीइंग, बाय हियरिंग, ऑल दैट कैन। जोर से साउंड आई, तुम्हारा मूड चेंज हो गया। प्लीजिंग में आया तो मूड बदल गया। फ्लावर्स देखा तो मूड अलग हो गया। फ्लावर में भी कोई, एवरी फ्लावर हैज गॉट डिफरेंट मूड। जितने भी फ्लावर है, जितने भी परफ्यूम है, इट्स ऑल कनेक्टेड। एक एक अलग अलग मूड की कैपेसिटी है। फ्लावर्स में भी, जैस्मिन में अलग, रोज में अलग, किसी में लव रहेगा, किसी में पीस रहेगा, किसी में शांत रहेगा। ऐसे एवरी फ्लावर, नेचर के साथ में रहो, मूड खराब नहीं होगा। एंड ओवर अ टाइम अगर नेचर के साथ में रहने से इट विल, प्रैक्टिस रहेगी तो गंदी चीज़ें भी तुम टॉलरेट करोगे, दूर हो जाओ। तो मेरे ख्याल से नीलेश मेहता समझ गया, मूड इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू सी एवरी सेकेंड। बेस्ट थिंग इज यू ऑलवेज लाइक टू बी विद द नेचर। Jay Prakriti, keeping a child's name on his or her Rashi is good for his character development, or is it just a myth? By Raj Choradia. देख भाई, पहले तो हमेशा एक अच्छे दिन जन्म राशि के मतलब ढूंढते थे, कोई दिन उसमें राशि रखते थे। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि तुम कितना भी सोचो, कितना भी करो, लेकिन जिसको जो कैरेक्टर है नाम आना, वो आ जाता है। जिसको जो कैरेक्टर नाम आ जाता, कितना भी ढूंढो तुमने, जब उसका कैरेक्टर उस समय उसकी एनर्जी आकाश से, बॉडी की एनर्जी की है, इसका वही नाम उसको आएगा। राम को राम नहीं आएगा, विपिन को विपिन नहीं आएगा, लेकिन नाम से नेचर और नेचर से नाम दोनों एकदम कनेक्टेड है। क्यों कि कोई रावण नाम नहीं रखता है, कोई नहीं रखता, तो नेचर है। बट 100% मैंने देखा है कि नाम और नेचर बहुत मैच होता है। बहुत सोचते हैं कि अच्छा ऑस्पिशियस टाइम देखो, राहु कालम, ये नहीं, तुम कितना भी देखो भाई, देखना जरूरी है, बट कितना भी देखो, जो उसकी बॉडी में करेक्टर आना है राशि से, वो ही आएगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि विपिन चंद का मीनिंग क्या है। विपिन मीन्स नॉट जंगल वन, वन मीन्स पीस। जहाँ हिरण, खरगोश, ये सब वन है, इसलिए राम वनवास गए, जंगलवास नहीं गए। तो वो विपिन का मीनिंग है एकदम नेचर के साथ रहना। तो वो मैं थोड़ी नाम रखा, नेचर से अपना आप आ गया नाम। Why do human beings lack satisfaction, and what is the cause for it, and how to overcome? Lack satisfaction. Yeah. Yes. And what is the cause for it? By Suresh Bhandari. The first and foremost कि अगर सीखना है अपने को, तो कंटेनमेंट बॉडी में बहुत जरूरी है। कंटेनमेंट मीन्स अपने पास अगर है और चला गया है, दुखी नहीं होना। फर्स्ट पॉइंट, यू लव समबडी एंड देन गॉन, और यू लाइक समबडी, कब अगर है आपका अच्छा और पैर टूट गया, रोना नहीं, सोना नहीं, कोई फैमिली मेम्बर चला गया, अटैचमेंट, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट चला गया,
ठीक है. You have to be contented with what is available. How can you use तो satisfaction आएगा. If you are not contented, आपको अगर करोड़ मल्टी और चाहिए, you will never be satisfied. नहीं हो सकता है. लेकिन बेचारा पुअर आदमी है, मेरा घर आ गया, आई एम सेटिस्फाइड. विपिन चंद एकदम कंटेनमेंट है, हो गया भाई, ठीक है भाई, खत्म. कंटेनमेंट सीखो, लाइफ में प्रैक्टिस करो कि यार आज ये है. बी इन द प्रेजेंट, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव एंड ट्राई टू इम्प्रूव, बट बी हैप्पी. डोंट फील शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग विच यू डोंट हैव. तो ये डिससेटिस्फैक्शन कभी आएगा ही नहीं. कंटेनमेंट, जो अपना हैप्पी रहो व्हाट वी हैव. एंड भंडारी इज हैप्पी इन ऑल रेस्पेक्ट. आई डोंट नो व्हाई शुड यू गेट दिस डाउट एट ऑल. पर्सनालिटी अच्छा दिया है, सब घर अच्छा है. भंडारी तो क्या, ये भंडारी कुछ नहीं रहेगा, किसी दूसरे करेंगे शायद, जो भी हो. Jai Prakriti, what's the reason behind the hardening and roughness of skin beneath the toes by Sanjana Golcha? And a related doubt is that फिर वही है, लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछते हैं, खुद अपने समझते नहीं है कि हर आदमी को ऐसा नहीं होता है, किसी को होता है. और बहुत बार हार्ड स्किन होता है, मीन्स 100% इट इज़ दी फुटवेयर. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सोल रीज़न इज फुटवेयर. क्या होता है, आर्टिफिशियल फुटवेयर से स्किन वहाँ पर मर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ पर स्किन हार्ड हो जाता है. बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन. इंस्टेड ऑफ किलिंग यू, दैट बॉडी किल्स दी पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट. जब भी रब करते हो अननेचुरल थिंग से, स्किन है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने से तुम्हारे जो स्किन के जो प्रॉपर्टी है वो मर जाती है. इसके सेल्स या जो भी बोलो आगे बढ़ने का रुक जाते हैं एंड इट डाइज. बहुत लोगों को होता है. और बहुत बार रॉन्ग राइट चप्पल, लेकिन बहुत घिस गई तो भी अपने पहनते रहते हैं. तो मेक इट अ पॉइंट, चप्पल फ्लैट थोड़ी भी बदली है उसको उठाकर फेंको. मैं तो 1 महीने में चप्पल फेंक, 1 महीने में. पहले मेरे को ये प्रॉब्लम आता था हार्ट का, अब 1 महीने में फेंकता हूँ. अभी ये प्रॉब्लम मेरा तो चला गया. what is the effect of food or recipes made from baking soda or baking powder by Kalpesh Jain? इसको रियलिटी बताता हूँ मैं, मेरे साथ में हुआ. बांधक मंदिर में हमारे लिए जलेबी में फूड कलर नहीं डालते, तो बराबर बनाया बांधक वालों ने. महाराज को भी बोल दिया, और जो भी है महाराज जो खुद बनाता है बिल्कुल फूड कलर नहीं डाला. बांधक के भोजनशाला में और बाहर में हार्डली 1 मिनट का फर्क है. खाकर बाहर निकला, बाहर मीन्स नॉट इवन आई पुट ऑन माई चप्पल, और वहाँ पर 2 छोटे छोटे लाल कलर के पॉइंट आए. मैंने बोला यार क्या किया. नहीं, फूफा जी बोलता है वो मेरे को, नहीं कुछ भी नहीं डाला, कलर डाला ही नहीं. अरे भाई ऐसे हो नहीं सकता है. बोला मैंने बेकिंग पाउडर डाला. ये बेकिंग पाउडर ऐसा होता है यार, अननेचुरल थिंग है. बेकिंग पाउडर सोडा सब मत डाला करो यार. डालते जी मेरे को तो उनसे होगी तो. और जिन लोगों को नहीं होती है उनकी बॉडी डब्बा है, जिसको होती है अलर्ट है बॉडी, एकदम अलर्ट. इतना बात, अरे हाफ a सेकंड में हो गया. Can you educate us on the basic principles of joint and nuclear family by Sunil Golcha? Golecha. गोले चाहो गोल चाहो कुछ भी, स्टाइल तो चलता ही है. मेरे को मालूम है, मेरा एक दोस्त है नवरत्न, उसने फॉरेन की स्टाइल कहते हैं नॉर्टन, तो वो सब चलता ही रहता है. वो तो नाम तो सब गोल चाह गोले चाह सब एक ही है. लेकिन उस फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट सुनील का ये डाउट. ही इज़ वेरी फैमिली कॉन्शियस मैन. दिस डाउट गिव्स द नेचर ऑफ द पर्सन कि ही वांट टू एडजस्ट, ही वांट टू हैव. हर जगह बेचारा एडजस्टमेंट करना चाहता है, सीखना चाहता है, बट पाँव बड़े लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता है. दैट इज़ दी ड्रॉबैक ऑफ ए मारवाड़ी जॉइंट फैमिली. दे विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट लाइक टू चेंज. और हमारे लोग जो यंग हैं, वो और ऊपर से 2 जूते मारेंगे तुम्हारे को, बोलेंगे कि जनरेशन गैप. अरे यार ये जनरेशन गैप वर्ड जैसे डॉक्टर ने बनाया ना, इतना बेकार वर्ड है. राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ राइट, आई मीन रॉन्ग इज़ रॉन्ग. अरे यार ये जनरेशन गैप देखते मैं भी गलती बोल दिया. बोलो कभी गलती नहीं करता. इतना मतलब टेंशन हो गया, आई स्टार्टेड टॉकिंग रबिश.
जॉइंट फैमिली में सबको एजुकेशन नॉट क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार होता है कि एल्डर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बार एल्डरली इतने अच्छे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दे टेक केयर ऑफ द जूनियर्स। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मैन रॉन्ग है, जूनियर का कुछ नहीं चल सकता, ये जो सेक्रीफाइस। लेकिन एक सॉल्यूशन जरूरी है, जेंट्स लोग सब एक साथ में खाना खाओ एट ए टाइम, लेकिन आजकल होता नहीं है। किसी को टेबल टेनिस जाना है जल्दी जाता है, किसी को ऑफिस खोलना है वो अपना टाइम बनता है, किसी को कुछ नहीं करना है सोता रहता है। तो वो सब एट ए टाइम अगर हार्मोनी है तो एट ए टाइम, अरे लोग बैठते नहीं डाइनिंग टेबल में यार, अपने लिया टीवी के साथ में टेबल लगा वो लिया, कैसे हो सकता है? हार्मोनी आएगी कहाँ से? हाउ कैन दी थॉट्स ट्रेवल? थॉट्स कैन ट्रेवल ओनली व्हाइल ईटिंग टुगेदर। जब भी वो थॉट्स अंदर में बॉडी में घुस सकते हैं, लेकिन बॉडी में नहीं घुसाना है, आराम से अलग बैठो। या जब डाइनिंग टेबल में जॉइंट फैमिली का अगर मेरे जैसा आदमी नहीं बैठेगा अलग, लेकिन आई चेंज नो, प्रीवियसली मैं अपना रहना चाहता था बिकॉज आई यूज्ड टू डू व्हाट आई लाइक, अब आई कांट डू दैट। तो अभी मैं हमेशा डाइनिंग टेबल में बैठता हूँ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज हार्मोनी। साथ में खाना खाओ, एक थाली में मत खाओ तो एक साथ में खाओ। एक सेक्रीफाइस 2, कंसर्न फॉर अदर्स 3, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स 4, एंड एल्डर्स मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जूनियर्स। अब छोटा आदमी कैसे पूछेगा? एल्डर्स में से तेरे को क्या चाहिए नहीं चाहिए, मम्मी के थ्रू किसके थ्रू पूछाओ करो। तो ये सब कंसर्न फॉर अदर्स है। एंड इट्स ऑल कर्मा कि कोई घर में सब अच्छे आते हैं और कोई घर में एक खराब आता है, फिर भी बेचारा एडजस्ट कर होता है। आई थिंक दिस द ओनली नो। और हार्मोनी बोला ना उसने, हार्मोनी वर्ड बोला कि No. Principles of joint and nuclear family. I have a doubt related to that. Is that how much should you harmonize and adjust? Should you harmonize and adjust just because they're family? I mean, is that a reason enough for you to keep sacrificing and keep adjusting? When do you? I mean, isn't your mental peace more important? This is not for me. This is for a friend because she has. But like, देखो मैंने अभी बोला ओपिनियन में डिफर, प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज मत करो, लेकिन एल्डरली तो सेक्रीफाइस करना है। और तुमने सेक्रीफाइस यूज करना ही नहीं है। जूनियर सबसे बेस्ट तो जूनियर ने कुछ सेक्रीफाइस करना नहीं है, उन्होंने खाली बैठना है, साथ में सुनना है, करना तो सब मरेगा तो बेचारा वो जो सीनियर है, जूनियर को तो कुछ करना ही नहीं है। जूनियर तो एक ही करना है कि वॉच करना है, देखना है कौन सेक्रीफाइस करता है, कितना करता है। खाना एक साथ में, कपड़ा कुछ भी पहनो, लेकिन एक फैमिली का कल्चर होता है ड्रेस का भी। एक फैमिली का कल्चर होता है कि भाई इस टाइप की ड्रेस अलाउड, इस टाइप का ड्रेस, तो वो करना अच्छा है। और नहीं मानते लोग तो वी कांट हेल्प इट। but you also said that if someone is speaking untruth or something you don't believe in, you should move away from that. Now, what if that person is your family member? Then what do you do? That's a big question. You can't move, you can't throw him out. You can't throw him out, but can you move out? Now, what happens in most what is the families guarantee? now? What is the guarantee that you are truthful and other is untruthful? What is the guarantee that he is wrong or you are right? But truth is one only, always. तो ये केस टू केस स्टडी है. It can't be, it's a case to case. Who is wrong, who is right? But in case you know that the other person is wrong, can you get up and move out? Shouldn't you? No, that depends on how much senior you are. You are married, children, your wealth. कोई भी डिसीजन के लिए तुम्हारी वेल्थ की कैपेसिटी, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत जरूरी है. लेकिन आजकल मैं देखता हूँ सब अपने को और कैपेसिटी समझते हैं. सब बोलते हम कमा लेंगे, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं डबल बिजनेस कर लूँगा, 4 कर लूँगा. सब बोलते हैं अरे भैया तुम्हारी कैपेसिटी तुमको नहीं जजमेंट करना आता है, या तो बाहर वाला करो या खुद बराबर करो. सब सोचते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज द पीपल थिंक दैट दे कैन अर्न मनी जस्ट बिकॉज नॉलेज. अरे कभी बॉडी चलेगी कभी नहीं चलेगा. अपना जजमेंट हाउ फार यू कैन गो इज द बिगेस्ट जजमेंट ऑफ योर ओन. वो दुनिया में मैंने देखा कोई करता नहीं है. बिकॉज ऑफ नॉलेज दे थिंक आई कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. लेकिन उनको मालूम नहीं कि कहीं उनकी वेल्थ कैपेसिटी, उनकी टाइम की कैपेसिटी, बॉडी की कैपेसिटी से मिलकर के नहीं करते हैं. खाली दे नो पीपल थिंक मैं सब कर लूँगा, 4 बिजनेस कर लूँगा, वो कर लूँगा, खाली बिकॉज दे नो. अरे भैया नोइंग इज नॉट द थिंग. यू हैव टू नो योर बॉडी, योर कैपेसिटी, एवरीथिंग, फ्यूचर.
आज के नहीं होता है, तो मैरिड के लिए अलग है, अनमैरिड के लिए अलग है. मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन इवन गेट आउट इफ यूर सोल नो. तो हाउ कैन आई गेट आउट? अगर मैं रॉन्ग हूँ या राइट टू जो भी हो, हाउ कैन आई लीव द हाउस एंड गो? आई हैव टू टॉलरेट. ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो केस टू केस स्टडी है. एंड वन थिंग, हाउ आर यू डू फॉर योर फ्रेंड, I tell you, he's not going to listen. I write and tell you. Write and tell you. He only wants your opinion, one of the opinion, alternative opinion, and not the only opinion. Please don't give your friends at this age any opinion. You may think you are doing good, but I tell you, he's not going to listen to you because he's going to ask the same opinion for 100 people. So, better don't waste your energy in giving the opinion. Get out. Getting emotional with tears in your eyes, getting emotional with tears in the eyes frequently is good for health or not? Is it connected to the food? By Rajesh Kashyap Parman. नहीं, वो मैं नहीं जानता इसको कौन है, राजेश कश्यप. बट एनीवे, हरदम रोना नहीं आएगा. बहुत बार सच को देखकर रोना आता है, दुख से रोना कम आता है मुझे, और लोगों को दुख सहन नहीं होता है, उसका रोना नहीं आता है. क्या करेगा उसके बाद में, उसलिए रोना आता है. दुख तो बहुत कम रोना आता है, बट दुखी होकर सोचते हैं कि क्या होगा क्या होगा अपना ये, तो उससे होता है. बहुत अच्छे लोगों को ही अच्छी चीज़ देखकर रोना आता है. एंड एवरीडे अच्छी चीज़ देखना मुझे नहीं पॉसिबल है कि वर्ल्ड में पॉसिबल है एवरीडे अच्छी चीज़. तो एवरीडे अच्छा लिखा है तो उसने आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद. ऑफन यू कैन सी गुड थिंग्स. Once in a way only you can see good things in the world nowadays. तो रोना तभी आएगा जब अच्छी चीज़. बहुत बार रोना आता है अच्छा चीज़, और बहुत बार ऐसे भी रोना आता है सामने वाला अगर इफ़ यू लव एंड ही डजंट लिसन टू यू फॉर अच्छी चीज़ एंड योर नो चॉइस, तभी बहुत रोना आएगा, क्योंकि अच्छे के लिए कर रहे हैं, सामने नहीं लिसन कर रहा है बिकॉज इज एजुकेटेड, तो भी आ जाता है. बहुत बार होता है अगर इफ़ यू लव द अपोजिट पर्सन. इफ यू डोंट लव, रोना नहीं आएगा. How to help the farmers is overall condition by Tribhavan Karve. अरे भैया ये वापस गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्वेश्चन है भैया. हाउ टू हेल्प, पैसा भेजना भेज दो ना त्रिभुवन जी, किसी को भेजना भेज दो फार्मर को. लेकिन ये क्या है, चेन रिएक्शन है. मनी इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इट इज ओनली गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल वी कैन हेल्प. वी कैन हेल्प 1 or 2 फार्मर्स, बट वो भी क्या करेगा 1 or 2, उसको खाली खाने देना. सी व्हेन यू आर हंग्री, teach him how to catch fish. Giving fish is not the solution. And I don't think we can reach to that level कि farmer वहाँ जाओ. हो सकता है बड़ा, we take a lead, make a big organization wherein people put money and individually you adopt one village. Adopt one small village, then it is possible. And अच्छे लोगों को पकड़ो. Zero therapy is ready, you are ready, catch hold of lots of people, maybe your thoughts can ignite and do the good job. Should we teach our kids to compromise or not? By Kaushik Jain. Compromise तो कब होता है, प्रिंसिपल में होता है. भाई तेरे को ये कपड़ा वो कपड़ा, ओपिनियन में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होता है. कॉम्प्रोमाइज इसमें आएगा क्यों? बच्चों को सिखाओ, अच्छा है अच्छे सिखाओ ना. कॉम्प्रोमाइज किया इसमें कोई इट्स सम क्वेश्चन डजंट, आई डोंट थिंक. बट व्हाट डू यू? I think by compromise they mean, should we teach them to adjust? Should we teach them to? एडजस्टमेंट जो देखो, कॉम्प्रोमाइज जब होता है प्रिंसिपल का. बाकी इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट तो बच्चे को कैसे ब्रॉटअप करते हो वैसे है. कोई बहुत पैसा वाला बच्चा है और गरीब के जाएगा, वहाँ पर रात को सोने जाएगा, वहाँ गाड़ी नहीं रहेगी, तो वैसे कोशिश करो बच्चों को सिखाने का कि पैसों के साथ ऑल एटमॉस्फेयर ऑल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज एडजस्टमेंट. वहाँ जाकर फील नहीं करना कि भाई गाड़ी नहीं, तकिया नहीं, वो नहीं. तो इस टाइप से इसलिए तो हम लोग सब जाते हैं जीरो थेरेपी में कि बच्चे भी सीख जाते हैं कैसे रहना हर एटमॉस्फेयर में. अपना ऐसे ट्रेनिंग करो. खाली अपने 4 फैमिली गए और रिसोर्ट में गए, वहाँ ठहर गए, हैं हाउ द चाइल्ड विल एडजस्ट. बाथरूम गंदा है वो रोएगा. ये सब इस टाइप से ग्रुप में जाओ, अच्छी अलग अलग जगह जाओ, चाइल्ड विल एडजस्ट. या कोई तुम्हारा रिलेशन है, अच्छा ब्लड रिलेशन है, मासी वासी, वहाँ पर भेजो. वहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ का अलग कल्चर है, देन यू कैन गेट एडजस्टमेंट. बट उसको कंप्रोमाइज नहीं बोलेंगे. बच्चा विल एडजस्ट टू द एटमॉस्फेयर, राइट? एनीवे Compromise could also mean that if someone
if you have a difference in opinion and you don't. So, बच्चे का डिफरेंस ओपिनियन में कोई पॉइंट ही नहीं है ना. okay, then. बच्चे का कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है. What are the reasons for numbness in the hands at night by Mahendra Desai? इसको हमेशा कुछ न कुछ आएगा. एक तो एज होने से नमनेस आएगा, एसी में होने से नमनेस आएगा, ठंडक से नमनेस आएगा, बट बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो आएगा. सिंपल. ब्लड सर्कुलेशन, ठंडे से दूर रहो, सॉक्स पहनो. एज हो गया है, देसाई का बहुत एज हो गया है अभी, तो अब कुछ इलाज नहीं कर सकते, लेकिन ठंड से दूर रहो, सॉक्स पहनो, सिर को कवर करके, कान में हवा नहीं जाना चाहिए. How to improve my relationship with dad when his how to improve relationship with dad when his thinking is very different by Sanjay Vinaykia. भाई ये सब सामने सामने आवे तो हो सकता है कि तेरा थिंकिंग क्या है, वेदर यू मे बी राइट, डैडी मे बी राइट, और हु इज सी. वो तो एक्चुअल का प्रॉब्लम है. बोथ ऑफ यू हैव टू एडजस्ट. वन पर्सन कैन नॉट एडजस्ट. एंड वेयर इज यू टू, कहाँ पर गड़बड़ है वो ढूंढे बिना इससे सब आंसर नहीं आ सकता है. क्योंकि वेयर एग्जैक्टली यू मे थिंक आई वांट टू हैव अ कार, बिग कार, एंड फादर में से नो, देन यू हैव टू लिसन टू फादर. इसमें कोई एक्चुअली थिंकिंग में क्या सोचते हो. वो बोलेगा रिटेल करो, ये बोला होलसेल करो, दोज पॉइंट्स ओनली. बाकी छोटा मोटा पॉइंट में तो फादर भी ले लो, डिपेंड्स. ये पॉइंट 1 to 1 का पॉइंट है. How does the development of the brain happen with respect to age? Is it gradual growth? If yes, then why is it that old people often complain about weak memory and other issues? If no, then is it like a mountain, increases initially and gradually decreases? If this is true, how is it that scientists are sharp and good even at their old age? So, how is it that the brain develops? कौन पूछा पहले? By Megha Khariwal. कोई मेरे को मालूम होना कि क्यों ये सब कहीं पढ़ लेते ना ये लोग. एक बात है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बच्चे का डेवलपमेंट 7वें महीने से मदर में 7, 8, 9 फिर 6 साल तक डेवलप होता है. मैंने जहाँ तक पढ़ा हूँ समझाऊँ. बट आजकल क्या होता है, थ्योरी 10 साल के बाद में चेंज हो जाती है. तो जो 6 साल में फिक्स होता है, हॉर्स भी 6 साल बोलता है, साइंस भी 6 साल बोलता है, उसके बाद में उसका यूसेज बढ़ता है कि कैसे यूज करना, टेक्निक, ब्रेन को कैसे अडॉप्ट कर यूज करना, वो धीरे धीरे बढ़ता है. और एक एज के होने में हर ऑर्गन की उम्र होती है, हर ऑर्गन की. लेकिन अगर लाइफस्टाइल बराबर है तो कोई ज़रूर नहीं है कि 60 साल 70 साल के बाद में भी कोई भूलेगा, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है. लाइफस्टाइल खराब है तो ब्रेन डल होता रहता है एंड मेमोरी कुछ. और एक बहुत बड़ी बात है कि बूढ़े लोगों को 50 साल पहले क्या खाया याद रहेगा, कल क्या खाया याद नहीं रहेगा, कल क्या खाया नहीं याद रहेगा. तो वो एक स्लोली जो उसकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एज द एज बाय द फूड ही कंज्यूम्स. अगर टॉक्सिक कोई है, कोई केमिकल जा रहा है बॉडी में, या कोई स्मेल भी जा रही है तो रॉन्ग हो सकता है. मुझे मालूम है एक बार ऊपर कोई 3rd फ्लोर में सिगरेट पी रहा था तो मेरे वर्ड भी फाल्टर होने लगे कि तो इट हैपेंस. आई डोंट थिंक अभी भी पुराना सब मेरे को याद रहता ही है, कल क्या पड़ा वो भी याद रहता है, क्या खाया वही नहीं याद रहता होगा बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न. Jay Prakriti, if one does not want to get angry and he thinks that he can control it, but he gets a control only for a short time, he gets angry even if he says that anger depends on his nature or because of the hatred of the person in front. Then the faster he gets angry, the faster it cools down, but there is no control. How to manage? भाई ये सब क्या By Bhavan Chajay. ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए पूछते हैं, खुद अपने पर अप्लाई करते नहीं है. करे तो इसका आंसर उसके पास ही आता है. ये सब क्या है, पीपल वांट टू आस्क क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. इफ यू नो ऑल दैट द आंसर विल कम ऑटोमेटिकली बाय योरसेल्फ. जब तुमको मालूम भी है फास्ट होता है कूल, फिर ये होता है, सब तुमने क्वेश्चन भी बोल दिया, आंसर भी बोल दिया, तो ये थोड़ी है एंगर. नॉर्मली इफ यू डिसलाइक एनी आइटम यू मे नॉट बी हैप्पी. यू डोंट लाइक एनी ड्रेस, एनी आइटम, एनी सोफा, तो स्लोली वहाँ से डेवलप होता है. एंड एवरी टाइम यू सी दैट मैन इट कन्वर्स इनटू हेट. एंड फिर वो एंगर नहीं होता है. एंगर इज समटाइम आई गेट एंग्री ऑन द चाइल्ड, दैट नॉट एंगर, दैट इज टू टीच. वो एक अलग एंगर है और ये हेट का एंगर अलग है.
तो वो प्रैक्टिस करना पड़ता है कि तुमको जो पसंद नहीं उससे दूर रहो भैया, वो हेट में आता है। और एंगर तो बहुत ज़रूरी है सिखाने के लिए, लेकिन अब somebody says विपिन जैन इज बदमाश ये वो, आई विल नॉट गेट अपसेट नाउ डेज। पहले था कि अब मालूम है अच्छा काम करने गालियाँ पड़ेगी, तो इस तरह से प्रैक्टिस करो अपने आप को। Jay Prakriti, my doubt is if family members make a 4-month-old zero therapy baby sit with a hand support, but Google says that if you make her sit with that, then it will cause back pain in later days. So, what should actually be done? By Priyanka Kavvad, Rajendra Setia's daughter. देख भाई, ये लोग क्या है, 2 घोड़े पर सवार होने वाले हैं इससे इतिहास है। उनको डॉक्टर बीमारी ढूंढे और इलाज अपने करें, तो गूगल को उसको देख कर तो गूगल जैसा करो, हम थोड़ी बोलते हमारे जैसा करो। हम बोलते नहीं जरूरत फॉलो करो फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे वो जरूरत है फॉलो करने वाला 10 जने लेक्चर सुने नहीं जाएगा भाई। 10 जने लेक्चर तो ये लोग तो 2-4 घोड़े पर सवार होने वाले हैं। ये भी सुनना, ये भी सुनना, ये भी करना, गूगल को भी देखना, ये भी देखना। मेडिकल साइंस इज वन थिंग एंड जीरो थेरेपी इज अनदर थिंग। बोथ कैन नॉट बी राइट इन वन प्लेस। कोई न कोई तो रॉन्ग होगा। दैट इज योर एक्सपीरियंस। गूगल ने बोला है तो और ढूंढो और 10 जगह ढूंढो भैया। तुम्हारा देखो कि बेबी अपना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेबी अपने आप खड़ा होना सीखेगी। तुमने उसको कुछ कराना नहीं है। और जो प्राम में चलाते ना, प्राम में चला सकते हो चलाओ। तो बेबी को, हर आदमी को अपनी बेबी द बेस्ट इन द वर्ल्ड सिखाना है। बेबी को देखना जरूरी है, फिजिकली सिखाना बहुत जरूरी नहीं है। बट ऑटोमेटिक बॉडी अपना आप, बंदर का बच्चा सीखता है, अपना आप सीखता है, बॉडी अपना आप सीखती है। उसको तुम कुछ मत कराओ, हमने कभी नहीं बोला है कुछ कराओ, लेकिन तुमने समझ लिया जरूरत है बेबी। हमने कुछ क्योंकि पहले बात तो है कि जरूरत है अपने बोलते हैं, घर वाले पूरे ना जरूरत है। क्या करेंगे विपिन जी? बॉडी अपने आप, खाली उसको वाच करने दो, एक्शन। जब भी एनर्जी आएगी बच्चा चलना सीखेगा, जब भी बोलने लायक होगा अपना बोलेगा। तुमने फोर्स करके कुछ नहीं कराना है, फोर्स करके। तो मेरे ख्याल से गूगल ने वही बोला होगा जो मैं बोल रहा हूँ, फोर्स करके कुछ नहीं करना है, खड़ा करूँ करना है। क्या होता है, दादी माँ देखो खुश हो जाती है, वो बच्चा चल रहा है, उनको खुशी के लिए बच्चों को टैच करते हैं। सिंपल सिंपल वही है बस। अपने खुशी के लिए बच्चों को ये कराओ चलाओ, उसमें कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपना बच्चा, अरे यार आदमी का बच्चा, जानवर का बच्चा अपना आप सीखता है, वो सिखाना पड़ता है किसी को? My personal experience, Uncle Ji, is that your aura is so strong that whoever comes in your wisdom, half the problem is solved there itself, and the half by sharing with you, whether it's physical, mental, or emotional. We are blessed to have you in our life by Pooja Ranka. Now, Jay Prakriti Uncle, how to be more courageous in decision making by Siddharth Marlecha. पूजा रांका कहाँ से आ गया? अलग अलग है She ना? was telling her experience. नहीं तो वही बात, इसलिए आई वांट टू टेल। Okay. तो उसने बोला ना हाउ वर्ड बोला ना उसने फर्स्ट। No, whoever came in your wisdom. हाउ सी नोज और आइज। ये एक्चुअली क्या होता है तुम समझते हो, लेकिन अभी मैं बार बार बोलता हूँ कि विपिन चंद के बारे में तुम अप्रिशिएट करना इज नो यूज एट ऑल। बिकॉज मुझे अप्रिशिएट करना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इट हैपन्स आने से। कारण क्या है कि इन जीरो थेरेपी वी वांट टू गिव हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड यू कम टू सीक हैप्पीनेस। दोनों का मोटिव एक ही है। तो बहुत बार क्या होता है, जो भी लोग आते हैं वो भी खुश होते हैं, उनसे ज़्यादा मैं भी खुश होता हूँ कि वो खुश है। तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एक ही होने से बार बार होता ही है। बहुत बार अपने जाते हैं इस घर में अच्छा हो सकता है, बट और वाइड है नहीं है, अपने नहीं समझ सकते हैं कि मैं अपने पास वो मीटर भी नहीं है, इतना वाइड है नहीं है, बट होता है। कोई बोलते हैं अच्छा है, वेयर यू फील हैप्पी गो देयर, यू स्प्रेड हैप्पीनेस, ही स्प्रेड्स हैप्पीनेस एंड बोथ आर हैप्पी। बस अच्छा ही। Jay Prakriti Uncle, how to be more courageous in decision making by Siddharth Marlecha. मेरे को ये समझ पर्सनल एकदम अलग होता है, एंड ये सब का आंसर हाउ कैन इट बी, देयर इज नो रेडीमेड आंसर फॉर ऑल दिस थिंग्स दैट यू गॉट टू से। एक दिन नहीं 4 दिन क्लास लेना पड़ता है बार बार, इतना इजी थोड़ी है। लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं फॉर अटेंडिंग द कोर्स। सो दिस इज वन ऑफ द कोर्स। आई ऑफ कोर्स वी डोंट चार्ज,
बट यू मस्ट गेट आउट टाइम, टेक आउट टाइम एंड देन कम. तुमको तो खाली अभी इसमें आकर पूछ ले तो तुमको कोई इंटरेक्शन के लिए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फ़ायदा तो ही हो सकता है. लोग फ़ायदा है इन्वॉल्वमेंट आओ मिलो विदाउट एनी फ़ायदा तो ये सब का इलाज चलते चलते बात करते करते आता है. ये ऐसा नहीं है कि रेडीमेड फार्मूला इसके लिए ऐसा. You always left home, home by 6:30 a.m. and reached back by 8 p.m. Generally, how did you manage to give auntie time? By Dharmendra Parekh. मैं वो सोचा इसका ही रहेगा क्योंकि और कोई नहीं पूछेगा. नहीं टाइम दिया तो वही तो मेरे को ये हुआ. अब टाइम था तो वो नहीं है, अब भगवान ने टाइम दिया तो वो नहीं है, और नहीं टाइम दिया तो अभी कोई कर्म है. ऑफ कोर्स माई मिस्टेक, आई डिड नॉट, बट देन आई एम ए सोशल पर्सन. आई कॉन्ट बी अटेंडिंग ओनली माई फैमिली ओनली माई. वेरी क्लियरली बोल दिया, नहीं तो चीटिंग में आएगा. आई हैव क्लियरली बोलो आई एम नॉट ओनली योर हस्बैंड, आई एम अ सोशल पर्सन. आई गॉट टू फेथ है लोगों को कि 7 बजे आना, खड़ा रहना लाइन में. सो आई गॉट टू सेक्रीफाइस. क्लियर बोल कर कहीं नहीं चीटिंग किया मैंने, क्लियर बोल दिया. तो ये कर्मा है, बैड लक. Jayapriti Uncle Ji, at what age can we let children take decisions what to eat, whom to be friends with, education, hobbies and business? By Sunil Golcha. ये सुनील बताने से नहीं होता है. बच्चे क्या देखने से समझते हैं, बोलने से बच्चा कोई नहीं समझता है. तो तुम ऐसा बिहेव करो, जहाँ जहाँ जाना वहाँ जाओ, जहाँ नहीं जाना अवॉइड करो. ऑटोमेटिक चिल्ड्रन विल लर्न व्हाट दे सी. चिल्ड्रन विल नेवर डू व्हाट यू टेल देम. चिल्ड्रन इतना है कि वो जो बोलेगा कभी नहीं करेगा. अगर बंदर से वो कैप लेना था तो बंदर को नहीं बोला फेंक कैप, कैप फेंका, बंदर ने फेंक दिया. तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, तुम उनको अच्छा दिखाओ, डू इट, डोंट टॉक, एंड इट कम्स देयर नेचर. एकदम आराम से उनका नेचर बदल जाता है. Jayapriti Uncle Ji, soaking mangoes and anjeer for more than the required time, is it harmful for health? हार्मफुल हेल्थ नहीं है, मैंगो ही खराब हो जाता है. क्यों? एक पहले तो मैंगो के लिए ज़्यादा पानी डालो, बहुत ज़्यादा पानी, एंड 2-3 घंटे के ऊपर समटाइम्स क्या होता है वो मैंगो वापस वो पानी पीने लग जाता है समटाइम्स. तो बहुत कम, अच्छा धो लो, आधा 1-2 घंटा रखो बस, नहीं तो फ्रिज में रख लो. अच्छी तरह से धो लो, बाद में फ्रिज रख लो, तो पानी में भिजाना भी जरूरत नहीं है. बट मेरा एक्सपीरियंस, पानी बाज जाता है एक स्टेज के बाद, वो बाज थोड़ी स्टेज वापस आम में चली जाती है. दिस वॉट माई एक्सपीरियंस. Does good time and bad time actually exist? Rahukal and Mangal, etc. By Megha Khariwal. यस इट डज. लेकिन मैं भी नहीं मानता कि उसके अनुसार अपने काम को ही रोकना नहीं चाहिए. काम अपने रोकना नहीं चाहिए. राहु कालम में मैं जो भी काम करता हूँ राहु कालम नहीं करता. लेकिन इट डज अफेक्ट, इट डजंट अफेक्ट. अगर आप बहुत पावरफुल हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट. लेकिन मैग्नेटिज्म इसका चलता रहता है. एनर्जी दुनिया में, यूनिवर्स में चलती रहती है. ये राहु कालम साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि वहाँ का मैग्नेटिज्म अलग है, यहाँ का अलग है. तो यहाँ पर है, वहाँ नहीं चलता है. तो ये सब साइंस बेसिक है. बट बिलीविंग टू मच विल स्टॉप योर प्रोग्रेस. सिर्फ बेटर डोंट. अगर देख लिया तो तुमको, लेकिन साइंस में सब टाइम, हर इवन डेट टाइम में भी अलग अलग टाइम होता है. सूरज और चंद्रमा जिस दिन फुल मून रहता है या फुल सूरज रहता है, तो डे में भी उसका टाइम बदलता है. अच्छे का इसका टाइम बदलता ही रहता है डिपेंडिंग ऑन. अगर हाफ मून है, फुल मून है, टाइम चलता ही रहता है ऊपर नीचे पूरा. अगर अपनी अच्छी आत्मा है, यू विल राइट जॉब, ऑटोमेटिक राइट टाइम ही आएगा. वो इतना प्रैक्टिस कर लेना कि अपनों को ये सब जरूरत नहीं है. इतना प्रैक्टिस करना कि राइट टाइम में आएगा. ज़्यादा बिलीव करना नहीं है. साइंस ऑफकोर्स राइट है. Do colors have vibration? If yes, how do we know which color has a good vibe and which one has a bad vibration? सब कलर का वाइब्रेशन है. सब कलर में कोई वाइब्रेशन खराब नहीं है. लेकिन अपना बॉडी को वो वाइब्रेशन सूट होता है नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है. अपना माइंड को ऑफ करो, ऑटोमेटिक यू लाइक दैट पर्टिकुलर कलर. एक्चुअली कलर, लोगों को कलर क्या वही नहीं, मेरे ख्याल से यू नो व्हाट कलर इज. अपने आप बोलते हैं रेड कलर है. किसी ने कोई पूछा कि भाई गोल्ड का कलर येलो क्यों है,
तो इज दैट कलर येलो फॉर गोल्ड? नो, इट इज नॉट. सब कलर अच्छे हैं. विप जार 7 कलर है. 7 कलर में 3 एक्सपेंशन कलर है. हॉट 3, कोल्ड, बीच वाला ग्रीन. आई थिंक विप जार में ग्रीन इज न्यूट्रल. तो ग्रीन कलर इज न्यूट्रल, ज़्यादा है कम है. और सातों कलर भी जब जब चाहिए वो बॉडी में हमेशा जरूरी है. अगर आप कोई लाल देख रहे हो टमाटर, तो ये एक्चुअली लाल नहीं है. सातों कलर जो है वो टमाटर क्या करता है, सब कलर अब्जॉर्व कर लेता है लाल के अलावा. लाल को रिफ्लेक्ट करता है. तो अपने को ये कलर, एक्चुअल कलर व्हाट वी सी इज नॉट द कलर एज पर द साइंस. द कलर अब्जॉर्ब and color reflected. The color reflected by gold is yellow. Rest of the color absorbed. Every item has got its own built-in property. Certain things will absorb certain colors, what they reflect. But black में ये पॉइंट अलग है, ब्लैक में नहीं है. ब्लैक आई थिंक रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, अब्जॉर्व कर लेता है ब्लैक. तो वहाँ पर इसलिए बहुत टेंशन है. ये हमारे IR थर्मोमीटर में काम आता है, क्योंकि IR थर्मामीटर सब अब्जॉर्व करता है, टेम्परेचर नहीं आता है. ब्लैक कलर में बॉडी में टेम्परेचर अलग आएगा, ब्लैक बॉडी स्किन में टेम्परेचर अलग आएगा. हाउ टू ओवरकम इमोशनल स्ट्रेस बाय सुरेश भंडार. अरे यार अभी क्या बोलना मेरे को. जब भी आपने सोचा है अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो कारण अपना आप आएगा रे भाई. बिकॉज आपने सीरियसली सोचा है आंसर. हर आदमी को आंसर आना ही है. इस टाइप के पैसे का आंसर नहीं आएगा, लेकिन आंसर तो बाकी तो इमोशन का तो आएगा ही. विल ट्राई टू क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण. उससे दूर हो गया. अटैचमेंट, लव, पैसे से प्यार, फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट, कुछ भी हो तो सब इमोशन तो होता ही है. इमोशन ऑल्सो नजर है, पत्थर थोड़ी है हमने. कोई जरूरी नहीं है इमोशन नहीं होना. इमोशन होना बहुत जरूरी है. रोना, हंसना, ये सब मूड इमोशन आर पार्ट of the body and a must for the body. Emotion doesn't mean bad. See, लोग समझते नहीं emotion is bad. is emotion can be happy also. If you're feeling uncomfortable, how should I understand if my body needs to be cooled and there needs to be a raise in temperature? Basically, how to understand and make the body stable so we feel comfortable. By Kalpesh Jain. देख भाई, अभी तू तो इतना समझ गया है, जरूरत रहा भी तेरे बीबी के थ्रू कि ये अपना आप आना चाहिए. अभी 4 दिन पहले मेरी बॉडी ऐसे गर्म हो गई और मुझे नहीं मालूम पड़ा, बट मैं स्नान 4-5 बार किया. अपना बॉडी अगर आप स्विच ऑफ कर दो तो बॉडी को जो चाहिए वो लेगा. अब मैं देख रहा हूँ बॉडी ठंडी हो गई तो मैं ज़्यादा स्नान नहीं कर रहा हूँ. बॉडी अपना, अगर आपने स्विच ऑफ करा कि सोचा तुमने कि हाउ टू तो काम नहीं आएगा. जस्ट स्विच ऑफ, बॉडी विल ऑटोमेटिक टेंड. मैं बहुत बार देखता हूँ जब भी ऑफिस से, उल्टा बोल रहा हूँ, घर से ऑफिस. सी आई ऑलवेज से घर इज ऑफिस, मतलब आई एम मोर कंफर्टेबल इन द ऑफिस. कितना अपना बात, विदाउट माई नॉलेज घर को ऑफिस बोल रहा हूँ. घर से सवेरे जाता हूँ ऑफिस. आई वॉच विदाउट माई नॉलेज, ठंड में आराम से जहाँ धूप है उस रास्ते में जाता हूँ, और गर्मी में ऑटोमेटिक दूसरे रास्ते साइड से जाता हूँ. बॉडी अपना आप मुड़ जाती है, अपने आप. सो जस्ट लिव इट टू द बॉडी एंड इट विल डू ऑटोमेटिकली. बट डोंट यूज योर ब्रेन, मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ. आई थॉट ओनली आफ्टर माई बॉडी टर्न, नॉट बिफोर दैट. अंकल जी, ऑटिज्म क्या है, वो क्यों होता है और ठीक हो सकता है क्या? बाय सरिता कंटे. कौन है यार? सरिता कंटे. सी क्या उनके वर्ड लेकर आ जाते हैं, मेडिकल वर्ड. इतना दुख होता है, मतलब दे वांट टू लर्न, PhD करना है, क्या करना है, किसको क्या होता है, कारण अलग होता है ना भाई. डॉक्टर कुछ भी बोलेगा यार. इतना दुख होता है मेरे को. ये सब नाम पहले पैदा ही नहीं होता, अभी क्यों पैदा, ये नाम अब क्यों पैदा हुआ? अरे यार बॉडी को क्या हो रहा है, वो बोलो तो बात. खाली इंग्लिश वर्ड बोलते तो बहुत दुख होता है. जीरो थेरेपी में बात करना बहुत दुख, मतलब मेरे को दुख होता है. एंड
Even though I know I may not answer because people will, जो डॉक्टर बोलता है उसका यार ये कोई बात बन गई है, तुमको क्या है पूछो मैं बताता हूँ. Can we eat makhana now in the summer and how? मक्खन. Makhana. Full Makhana. हाँ, makhana. For the last 2 days it's been raining during the night. So does it affect how we eat? कहाँ पर? Makhana now by Kavita Gadam. गलत. अच्छा बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो तुम फ्राइड करके मखाना खा सकते हो दोनों टाइम में, और ऐसे बिना फ्राई करके भी बारिश में खा सकते हो, लेकिन फ्राई वाला तो ठंड गर्मी दोनों में भी खा सकते हो. और कोई जरूरी नहीं, खाना ही जरूरी है ऐसा थोड़ी है. इन रेन यू हैव टू ईट फूड विच अब्जॉर्ब्स वाटर लाइक उपमा, पोहा विच अब्जॉर्ब्स वाटर, सब्जी, ड्राई सब्जी, नॉट ग्रीन सब्जी. इसीलिए अपने चौमासा में सब ड्राई सब्जी, बिकॉज ऑलरेडी पानी बहुत होता है, तो सब साइंस बहुत परफेक्ट है. लेकिन चौमासा वन होता है तो बारिश होती है, मद्रास में चौमासा में बारिश नहीं होती. सो ऑल दिस उल्टा उल्टा है. How to have a smiling face by Sanjay Acha. यार ये कोई फार्मूला होता है क्या रेडीमेड यार? सी इफ यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, if you are happy with what you see, if you are happy with people around you, so automatically you are happy. You don't have to smile. If you really have to smile without any reason, you will be surely mad. Smile from the point, जो भी है. और एक बात बोलना था, मैंने अभी अपने साइड में एक जोक लिखा है, तो एक लेडी ने लिखा समझ नहीं आया. अरे जो कुछ समझने नहीं है तो गलती किसकी है भाई? हाँ समझ नहीं, ये भी कोई जो कुछ समझाने होता है क्या? एंड दैट वाज, इसलिए मैंने बंद ही कर दिया डालने का. दिस इज नॉट माइंड, यू कैन आस्क क्वेश्चन इज माइंड. कहीं बुक में डाला हुआ है, उसने डाला है टाइम पास के लिए बच्चों के लिए, तो समझ नहीं है. इट्स समझाने के लिए थोड़ी, तो जोक. और इंसल्टिंग भी है, नहीं समझ आए, इज इंसल्टिंग. वाई डू वांट टू कम एंड कमेंट ऑन द फेसबुक लाइक दिस? इफ यू कांट अंडरस्टैंड, कांट हेल्प इट. बट क्लियर था वो जोक में. सच बोलोगे तो जेल में जाओगे, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे. तो उसमें ये तो समझने का पॉइंट है. While living in the same house, if someone becomes good than someone, then who becomes guilty from someone? क्या क्या समझ नहीं आया. While living in the same house, if someone becomes better than someone, then who becomes guilty from someone? नहीं समझ नहीं आया. क्यों कि बेटर बेटर क्या होता है? एक बात है कि कंपैरिजन इज द फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. द मोमेंट यू कंपेयर बेटर, इससे बेटर. फैमिली में कंपैरिजन, फैमिली में हार्मोनी में, जैसे गुले चना They've said good. I think good then would mean better is my भाई, word. Better is not their word. भाई इससे नहीं समझ में आया. बहुत बार क्या होता है इसे लिखने में नहीं समझ में आएगा. ये वन वे टॉपिक है, तो वी कांट आस्क ऑल्सो, वी कांट अंडरस्टैंड. और एक्सप्लेन करेगी नेक्स्ट में कोई भी जो भी पूछा होगा. लेकिन एक बात है ना, वाई शुड यू से बेटर कंपैरिजन? बेटर वर्ड ही नहीं आना चाहिए फैमिली Better में. I used. They said good then, which गुड देन मीन्स वही हुआ ना. गुड हाँ. देन, अरे यार गुड देन क्या? गुड देन मीन्स क्या? गुड मीन्स कंपेयर. माई पॉइंट इज कंपैरिजन. बेटर बेटर नहीं है, कंपैरिजन. कंपैरिजन आया तो कंपैरिजन वर्ड इज द वर्स्ट थिंग इन ए जॉइंट फैमिली. गुलेचा कंपैरिजन. यू हैव टू ऑलवेज अप्रिशिएट. हर आदमी ने फैमिली में अप्रिशिएट करना है कि उसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है. कलेक्ट ऑल द गुण. और खाली अपने उससे बेटर है, उसकी कमी अच्छी है, उसका लुक अच्छा है, उसकी बीवी ज़्यादा काम करती है, उसकी बीवी कम काम करती है, ये सब कंपैरिजन तो आया. जिंदगी कभी ऊपर नहीं आ सकती है. डोंट कंपेयर योर मनी, डोंट कंपेयर. इतना वर्स्ट थिंग है लाइफ में. कंपैरिजन होने नहीं चाहिए. कंपेयर किया मीन्स अपनी आत्मा को दुखी करना है पक्का. टाइम क्या हुआ भैया? 9:21. 9:20 हो गया क्या? 9:21. एक दो पूछ लो. Pranam, use of body spray and perfumes create prickly heat problems. Is that true? By Dikshit Sajjan. ये कौन फैमिली माननी है? ये छाजे कभी भी जीरोथेरेपी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो. अरे यहाँ पर स्प्रे तो अलग, स्प्रे तो पूरा ब्रेन को डैमेज करता है, वही नहीं मालूम. प्रिकली
मालूम है कि चांस के ऊपर इतना केस लगा दिया, कितना करोड़ों का केस लगा दिया, बच्चों को पाउडर नहीं लगाना चाहिए, उसमें तो कितना चांस के ऊपर केस हो गया, आस्मा बच्चों को लेंस का प्रॉब्लम करिए, तो ये सब नेचर के अगेंस्ट में, वो तो जीरोथेरेपी नहीं है, उसे कहीं पढ़ ले तो मैं क्या करूँगा। बहुत दुखी होना पड़ता है मेरे को यार कि ये सब अननेचुरल के पास में रहेगा तो कैसे होगा बॉडी। इतना डेंजर है स्मेल स्प्रे, बॉडी पर तो जाता ही जाता है, नाक में जाकर ब्रेन को डैमेज कर देता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग जजमेंट आएगा, ये सबसे ब्रेन स्टार्ट थिंकिंग रॉन्ग जजमेंट। इसलिए जीरोथेरेपी बॉन्ड लगती है, कहीं भी रॉन्ग जजमेंट चांस बहुत कम है, बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम दी garlic smell, from onion smell, from any unnatural smell. Even though we may call natural, but it is negative smell. Garlic, onion spray, all are negative smell. Rose, chandan, all are positive smell. तो वो उससे पास में रहो, अननेचुरल स्मेल, नेगेटिव स्मेल से दूर रहो। और ये कोई बच्चे को लगाने का आइटम है क्या? How to get rid of period cramps by Sanjana Gulshan. अरे भाई बॉडी ठंडी हो जाती है ना, तभी सब होता है। ब्लड सर्कुलेशन इज ऑल कनेक्ट विद ब्लड सर्कुलेशन। अगर बॉडी एकदम अच्छी है, मालूम है जीरोथेरेपी में कितने पीरियड्स खराब थे, और जीरोथेरेपी खाना खाती है, सबका अपना 2 साल लगता है पीरियड्स को लाइन लाने में, प्रोवाइडेड रिलीजियसली यू फॉलो जीरोथेरेपी। इफ यू रियली नो, पीपल डोंट नो। जैसे भी कोई पाउडर लगाएगा है, वो लगाएगा, खाना जीरोथेरेपी खाएगा, बोलेगा अलग है, करना अलग है। जीरोथेरेपी इज नॉट ईजी टू फॉलो। मेरे ख्याल से बस हो गया ना, बोल क्या है लास्ट। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज गुड। चलेगा क्या रे दीपन, पूछ ले रहे। अगर थोड़े लोग घर चले गए, खाना खाना रहेगा ना सबको, खाना खाना है तुमको भी, वो तो गुड डिसिप्लिन क्या है? strict discipline is good or our natural instincts good. When I follow strict discipline, I start getting bored after a few days. So what should I do? Sanjay Vinaykia. एक्चुअली क्या है, ये सब अपने मन के अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन मस्ट कम ऑटोमेटिकली, फॉलो नहीं है तब कोई दुखी नहीं होगा। डिसिप्लिन रहना बोलेगा तो तुम्हारा दुखी होगा मन। नेचर ऐसा बनना चाहिए, गए चप्पल खोलना, होटल गए आवाज़ कम करना। डिसिप्लिन रहना इसके लिए नहीं है, यू कन्वर्ट द नेचर एज अ डिसिप्लिनरी पीपल, तब दुखी नहीं होगा। नहीं तो बोर हो गए, क्यों कि तुम उसके आगे बोर होना है मीन्स तुम अपने मन के अगेंस्ट में कर रहे हो। सिंपल एज दैट। जय प्रगति।